Okay, so last lecture में we had discussed about term symbol, basis क्या होता है term symbols का, and how do we find out term symbol for particular given ions. Okay, now in this lecture we will discuss about some examples. Suppose there is some ion like vanadium 3 plus or nickel 2 plus. So how can we find out term symbol for these ions? Okay, so first we know that there are two formula. First 2s plus 1 L, that is for term symbol, and 2s plus 1 L, that is for atomic term, that is also known as spectroscopic term, as we discussed in our last lecture. जस्ट जे आपको रिमूव करना है तो ये बन जाएगी एटॉमिक टर्म, जे अगर आप पुट करते हो तो दैट इज टर्म सिंबल. ओके, वेयर 2s plus 1 is spin multiplicity and L is LL coupling, as we discussed already. J is the LS coupling, Russell's Honda coupling. Okay, so first example is term symbol for V3 plus ion, vanadium 3 plus ion. Okay, so there are some steps. First step is determining term, yeah, or capital L value. Capital L value is the LL coupling. Very simple, as we discussed in our last lecture. Okay, so how do we find सर out? अगले वाली स्लाइड एक बार फिर दिखाइए. Okay, this one. Okay, okay, ओके सर. okay. So term symbol we will find out na V3 plus vanadium 3 plus ion के लिए. So there are some steps we have to follow. The steps. First step is determining the term. Term means L value, S, P, D, F, G. These are terms. आप लोगों को पता है already कि S, P, D, F टर्म होती है. S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है, so on. So vanadium first electronic configuration is 4s2 3d1 in zero oxidation state. But we have to find out the term symbol for V3 plus. So V3 plus electronic configuration will be 4s0 and 3d2. D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. तो अपने को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको पता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? प्लस एल से लेके माइनस एल तक. ओके, एंड डी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है. सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर डी ऑर्बिटल्स विल बी +2 to -2. Okay, now we have to find out the capital L value. Capital L value is always given by summation of small l value. Small l value means जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज है. Okay, so here is only 2 electron. Okay, and first electron's magnetic quantum number is +2 L value, and second one is +1. So we have to sum of these two values. Okay, so 2 plus 1 gives 3. It means capital L की value कितनी आ गई? 3. And we know that capital L अगर 0 है तो S टर्म आती है, 1 है तो P आती है, 2 है तो D, 3 है तो F, and 4 represents 4 for G value. Okay, so here is L value 3, so that's why its term will be F. Now in the second step we have to determine capital S value. Capital S value क्या होती है? SS coupling, जो अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. So it is always given by S1 plus S2 to S1 minus S2. Okay, S1 plus S2 means largest value, S1 minus S2 means smallest value. Okay, and we know that spin of an electron is always 1/t. जो spin value होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होती है? 1/2. और अपने पास यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है. ओके, सो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन वैल्यू कितनी होगी? +12 और +12 दोनों के लिए एक एक 1/2, मतलब 1/2 and 1/2 will be the S value. So just we have to put the value in formula. तो S1 plus S2 हाफ प्लस हाफ से लेकर प्लस हाफ माइनस हाफ. ओके, सो S1 प्लस S2 से लेकर S1 माइनस S2. और जो ये साइन होता है मॉडुलस साइन, it is for it says that it should be always positive. So just we have to solve it out. Now S will be 1
देखो 1 किसके से आएगी, हाफ प्लस हाफ 1, एंड हाफ माइनस हाफ क्या होती है 0। सो एस अपने पास कितने आ गए, 2 आ गई, 1 एंड 0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मल्टीपलिसिटी, कैलकुलेट करना है अपने को मल्टीपलिसिटी, फॉर्मूला क्या होता है 2s प्लस 1। ओके, सो अपने पास s की वैल्यू क्या आ गई, 1 आई है और 0 आई है, क्लियर। सो 1 आएगी तो 1 के लिए अपने को क्या करना है, 2s प्लस 1 निकालना है, तो 2s प्लस 1 क्या होगा, 2 into 1 plus 1 is equal to 3. Similarly, we have to calculate the 2s plus 1 value if s is equal to 0. ये जो 0 है ना, इस 0 के लिए भी हमको 2s plus 1 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, so 2s plus 1 वैल्यू क्या होगी, 2 into 0 plus 1 gives 1. इट मींस अपने पास 2s plus 1 इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई है, 3 and 1। सो जस्ट अपने को वैल्यू पुट करते हैं, तो 2s plus 1 फर्स्ट किसकी है, ये 3। सो 3 अपने लिख ली, और f कहाँ से आया, क्योंकि l की वैल्यू कितनी है 3 अपने पास, और 3 इसके लिए होती है f टर्म के लिए, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर f, एंड j वैल्यू अभी फाइंड आउट करना है, तो इसको अपन एज इट इज लिखते हैं। तो अपने पास क्या हो गया, इसकी मल्टीपलिसिटी 3 and 1 है, तो 3fj और 1fj, देयर आर टू टर्म आ गई। ओके, अब ये तो एक जनरलाइज फॉर्मूला हुआ, लेकिन जब कभी भी V3 प्लस इक्वल टू प्लस या Cr3 प्लस ऐसे सिंपल सिंगल आयन दिए हुए होते हैं, या किसी एक ही ऑर्बिटल के लिए अपने को फाइंड आउट करना होता है, तो अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2s plus 1 where s is equal to n/2 and n is number of unpaired electron. So n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, V3 प्लस में D2 यानी कि 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर देयर आर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। सो जस्ट पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला, s is equal to 2/2 is equal to 1 and 2s plus 1 gives 2 into 1 plus 1 is equal to 3. इट मींस अगर सिंगल आयन है ओनली, तो उसके लिए अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, सो 2s plus 1 की वैल्यू आ गई 3। नाउ स्टेप 3, दैट इज डिटरमिनिंग ऑफ j वैल्यू। अब अपने को इस फॉर्मूले में देखो, स्पिन मल्टीपलिसिटी की वैल्यू आ गई, l की वैल्यू आ गई, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द j वैल्यू। तो वो कैसे करेंगे, j वैल्यू ऑलवेज गिवन बाय l plus s से लेकर l minus s, l plus s to l minus s, l plus s for लार्जेस्ट वैल्यू एंड l minus s इज लोएस्ट वैल्यू। तो अपने पास s क्या है, 1 है और 0 है, तो दोनों के लिए अपन जे वैल्यू वी विल फाइंड आउट। और l वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू 3। So for s is equal to 1 and l is equal to 3 के लिए j वैल्यू क्या होगी, 3 plus 1 से लेकर 3 minus 1। So this is 4 हाईएस्ट वैल्यू होगी and 2 लोएस्ट। अब अपने को इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के लिए एज आई टोल्ड यू कि 1 माइनस करते रहना, ये लास्ट वैल्यू इससे नीचे नहीं जाने का एंड इससे ऊपर नहीं जाने का, जस्ट वी हैव टू माइनस 1, 1 माइनस सब्सट्रैक्ट करते रहने का। अगर 1 माइनस करेंगे तो 4, 3 and 2, सो ये तीनों वैल्यू क्या आ जाएगी, j वैल्यू if s is 1 and l is 3। so for s is equal to 0, अब दूसरी जो s वैल्यू है ये वाली 0, इसके लिए अपन j वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, l तो कॉमन रहेगी, so j is equal to 3 plus 0 to 3 minus 0, so it is 3 and 3, or we will consider only 1 3। okay, so with this way we can find out the j values। one minute। okay, so now next step is determining ground state term। अब अपने पास इतनी j values आ गई, तो ground state term कैसे determine करेंगे, there are 4 things we have to remember। सबसे पहले अपने क्या करना, फर्स्ट वी हैव टू चेक लार्जेस्ट 2s plus 1 वैल्यू, यानी कि स्पिन मल्टीपलिसिटी सबसे हाईएस्ट होगी वही ग्राउंड स्टेट होगी। सेकंड, लार्जेस्ट l वैल्यू, जिसके लिए l टर्म यानी कि जो टर्म होती है उसमें l की वैल्यू ज्यादा होगी, लार्जेस्ट होगी, दैट विल बी द ग्राउंड स्टेट। थर्ड थिंग, लार्जेस्ट j वैल्यू कब होगी ग्राउंड स्टेट, जब when orbitals are more than half filled, more than half filled होंगे तो largest j value will be ground state term, and if orbitals are half filled or less than half filled then lowest j value will be ground state। अब इसको समझ लेते हैं अपन चारों को।
for largest 2s plus 1 value, यानी कि spin multiplicity. For example, if we have three terms like 3p, 1d and 1s, और फिर it is asked that which one will be ground state term. अगर आपके पास तीनों टर्म है और आपसे पूछा जाता है कि कौन से टर्म जो है वो ग्राउंड स्टेट टर्म है, ओके, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो फर्स्ट रूल क्या, लार्जेस्ट 2s plus 1 वैल्यू. 2s plus 1 मींस स्पिन मल्टीपलिसिटी वैल्यू. सो ये हमेशा कहाँ लिखी जाती है? इट इज रिटन अपर स्क्रिप्ट में लिखी जाती है. ओके, सो 3, 1 एंड 1, दीज आर द 2s plus 1 वैल्यू. जिनमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? 3 है, तो अपन कहेंगे ये ग्राउंड स्टेट विल बी 3p. नाउ सेकंड रूल पे आते हैं. सपोज वी हैव थ्री टर्म्स लाइक 3f, 3p एंड 1g. अब इसमें क्या हो गया? लार्जेस्ट 2s plus 1 वैल्यू देखेंगे तो देयर इज 3, देयर इज 3, यानी कि 2 3 3 है. इट मींस वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि व्हिच वन विल बी ग्राउंड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ 2s plus 1 वैल्यू. ओके, स्पिन मल्टीपलिसिटी के बेस पर अपन इसको लार्जेस्ट स्पिन मल्टीपलिसिटी के बेस पर अपन ग्राउंड स्टेट टर्म नहीं फाइंड आउट कर सकते. देन वी हैव टू गो फॉर एल वैल्यू. अब आपको पता है एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 3. पी के लिए कितनी होती है? 1. जी के लिए कितनी होती है? 4. तो लार्जेस्ट वैल्यू हो गई 4. बट अपने को ये फॉर्मूला भी कंसीडर करना है, ये वाला रूल, लार्जेस्ट 2s plus 1. सो इन सब में सबसे पहले देखो स्पिन मल्टीपलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? इन दोनों की. तो ग्राउंड स्टेट इन दोनों में से कोई एक होगी. अब फिर जाएंगे अपन लार्जेस्ट एल वैल्यू पर. तो एल वैल्यू किसकी ज्यादा है? एफ की ज्यादा है, क्योंकि 3 होती है एल वैल्यू एंड पी की एल वैल्यू इज 1. So that's why ground state term will be 3f. Now come to the j value. अब सपोज अपने पास ऐसी कोई टर्म है जिसमें स्पिन मल्टीपलिसिटी भी सेम है सबकी. एल वैल्यू एफ के लिए 3 होती है, तो 3 3 3 सबके लिए सेम है. तो अपन अब कैसे पता लगाएंगे कि इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होती है? सो देन वी हैव टू फॉलो द जे वैल्यू. जे वैल्यू क्या है? 4 3 एंड 2. ओके, 4 3 एंड 2 आर जे वैल्यूज. सो फर्स्ट केस क्या है? इफ ऑर्बिटल्स आर मोर देन हाफ फिल्ड. अगर ऐसा कोई केस है, देखो ये मोर देन हाफ फिल्ड है, तो कौन सी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी? लार्जेस्ट जे वैल्यू. तो इस केस में कौन सी हो जाएगी? 3f4. इफ अपने पास केस है हाफ फिल्ड ये वाला और लेस देन हाफ फिल्ड, ऐसे कोई केस है, तो इस केस में सर कौन सी हो जाती लार्जेस्ट है? एल लोएस्ट वैल्यू. लोएस्ट जे वैल्यू 1 में. हेलो सर. हाँ बोलो. सर ऊपर वाले में लार्जेस्ट एल वैल्यू में तो जी1 नहीं नहीं आएगा. हाँ, तो वही तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि अपने को सारे रूल नंबर वाइज चलना है. फर्स्ट रूल क्या है? लार्जेस्ट 2s plus 1 वैल्यू स्पिन मल्टीपलिसिटी. तो इन तीनों में देखो स्पिन मल्टीपलिसिटी किसकी ज्यादा? 3f 3p, ये ज्यादा है ना दोनों, यस. राइट? तो अपन इसको कंसीडर नहीं करेंगे. क्लियर? यस. वन बाय वन अपने को कंसीडर करना है कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि 2s plus 1 वैल्यू किसकी सबसे लार्जेस्ट है, ज्यादा है. उसके बाद अपने को एल वैल्यू पे जाना है, और फिर भी नहीं होगा तो इस पे जाने का. क्लियर? यस सर. Okay. So lowest J value for half filled and less than half filled. So suppose if we are having case like this, there is half filled orbital, there is less than half filled orbital. Then which one will be ground state? So in that case, the ground state is lowest J value. जिसकी lowest J value होगी वही उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगा. Okay. So अब अपना केस लेते हैं वापस कि वी अपने क्या करना था? V3+ के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करनी थी. ओके, सॉरी, टर्म सिंबल फाइंड आउट करना था. सो वी नो दैट इन केस ऑफ V3 देयर आर लेस देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. क्या होता है? V3 के केस में लेस देन हाफ फिल्ड है. एंड इफ वी सी द फॉर्मूला 2s plus 1 Lj, एंड अपन अगर j की वैल्यू पुट करें, सो 3fj अपन कंसिडर कर रहे हैं, तो j की वैल्यू क्या आई थी? 4 3 and 2. इन लास्ट स्लाइड वी डिस्कस दैट j values will be
were 4, 3, and 2. So we will put the J value. So we have three terms: 3F4, 3F3, and 3F2. Now in तीनों में से we have to identify which one will be ground state term. So as I discussed you that if less than half filled orbitals are there, if spin multiplicity is the same, if L value is the same, then we have to see and check the J value for finding out ground state term. Okay, so in case of V3 plus, the orbitals are half filled, and if orbitals are half filled, then we have to consider lowest J value, and because of this, the lowest J value is 3F2, and that's why the ground state term symbol will be 3F2 for V3 plus. Clear? Now सब second example is term symbol for Ni2 plus. Ni2 plus के लिए अपने को term symbol निकालना. So वही step 1 क्या है? Determining of term और L value. तो निकल का electronic configuration क्या है? 4s2 3d add. Okay, it is not V3 plus, it is Ni2 plus. Just consider it Ni2 plus. So in case of Ni2 plus, the electronic configuration is 4s0 and 3d add. Okay, like this. ये जो ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं आपको, इनको अपन ने फिल कर लिया 3d at. 4s में तो 0 है, so we will not consider that, but it is 3d at. Now magnetic quantum number अपने को पता है d plus l से minus l plus 2 to minus 2. Now we have to find out the l value which is summation of l. तो summation of l करेंगे तो इन सब का आगे यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, so +2 + +2 यानी कि 4 नंबर इसके हो गए, इसके 2 हो गए, 4 और 2 6 प्लस के 6 हो गए. नाउ ये तो 0, इसको वी विल नॉट कंसीडर दिस. नाउ -1 and -2, it is -3. So 6 - 3 gives 3. L value is 3 and we know that L 0 for S, 1 for P, 2 for D, 3 for F and 4 for Z. That's why if it is 3, then its term will be F. Very simple. Now come to the second step, determining of S value. S value is SS coupling. So since it is single ion Ni2 plus, so we will use this formula 2s plus 1, where S is n/2 and n is the number of unpaired electron. Now for nickel 2 plus, there are 3d at. It means there are, just see this, there are 2 unpaired electrons. Okay, so S is equal to 2/2 is equal to 1, and 2s plus 1 is 2 into 1 plus 1 is equal to 3. Now S is 3. 2s plus 1 is 3 spin multiplicity. Now third step is determining J value. So J is given by L plus S to L minus S. S क्या है अपने पास? देखो S की वैल्यू कितनी आई है? 1. ओके, एंड L की वैल्यू कितनी आई है? 3. So just put these value in the formula. 3 plus 1 2, 3 minus 1, and J is equal to 4 to 2. तो अपने को इसको कंप्लीट करना है, जस्ट -1 करते रहना. कहाँ तक करना है -1? इससे नीचे नहीं जाने का, लोएस्ट वैल्यू से. ओके, सो 4 - 1 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 3. तो J वैल्यू कितनी हो गई? 4, 3 and 2. नाउ लास्ट स्टेप इज डिटरमिनिंग ग्राउंड स्टेट टर्म. लास्ट स्लाइड में भी अपने डिस्कस किया था कि चारों रूल देखने के अपने को. सो फर्स्ट अपने को इसकी टर्म लिख देने का. टर्म कौन सी आ गई? 3F एटॉमिक टर्म, एंड टर्म सिंबल क्या आ गया? J की वैल्यू कंसीडर करने के बाद, दैट इज 3F4, 3F3, 3F2. ओके, नाउ देखो स्पिन मल्टीपलिसिटी सेम है सब में, L की वैल्यू सब में सेम है, तो वी हैव टू कंसीडर J वैल्यू फॉर फाइंडिंग आउट ग्राउंड स्टेट टर्म. And for that purpose, we have to see the orbital, whether these are half filled, less than half filled, or more than half filled. So if we see if these are more than half filled, and if it is more than half filled, then like more than half filled है, तो more than half filled होती है तो we have to consider largest J value. Largest J value किसकी है? F4. So that's why 3F4. So largest J value हो गई 3F4, and that's why ground state term symbol for nickel क्या हो गया? F4. 3F4.
ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। नाउ देर आर टू केस। अभी जैसे एज आई टोल्ड यू, ओनली सिंगल आयंस हो या सिंगल ऑर्बिटल के लिए निकालना है, तो क्या करते हैं, अपने को एल वैल्यू कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एल से, एंड एस वैल्यू कैसे निकालते हैं, n/2 से, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, देन एस वैल्यू को अपन 2s1 फॉर्मूले में फिट करते हैं, 2s+1 स्पिन मल्टीपलिसिटी फॉर्मूले में, एंड देन 2s+1 की वैल्यू निकालते हैं। बट अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि S1, ये सेकंड वाला केस, कि S1P1 और 3P1 3D1 इनके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म निकालो या एटॉमिक टर्म सिंबल निकालो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर ऐसा केस आ जाता है तो आपको S की वैल्यू कैसे निकालनी है, इस फॉर्मूले से, S1+S2 टू S1-S2, और L की वैल्यू कैसे निकालनी है, L1+L2 टू L1-L2। सो आपको ये दो two things you have to fit in your mind. If single ions are asked, atomic term for single ions are asked, then you have to use L value for with summation of L and S n/2, where n is the number of unpaired electron. And अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि find out the term symbol for S1P1 या 3P1 3D1, ऐसा कोई पूछा जाता है, ऐसा कोई combinations, then you have to use the formula like this कि S की वैल्यू कैसे निकालेंगे, S1+S2 टू S1-S2, हम L की वैल्यू निकालेंगे L1+L2 टू L1-L2। अब एक एग्जांपल करते हैं, तो विद दैट एग्जांपल अपन अच्छा समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द टर्म सिंबल फॉर S1P1, S1 और P1 के लिए फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको इसको डिपो में फिट कर दो। डिपो में फिट करने का मतलब जस्ट शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो S में 1 इलेक्ट्रॉन है, S1, P में 1 इलेक्ट्रॉन है, P में 1 1। अब आपने क्या करना, वापस वे जो है, रूल्स जो है वो सब सेम है, जस्ट आपको थोड़ा सा अलग सोचना है। ओके, तो S1 1 इलेक्ट्रॉन, P1 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर S के लिए हमेशा 0 होती है, आपको पता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से आता है, L। L क्या होता है, S के लिए 0, P के लिए क्या होता है 1, तो +L2 -L। S के लिए 0 है तो 0, P1 क्या है, P के लिए क्या, +1 to -1। नाउ अपने को क्या करना है, L की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, L1+L2 टू L1-L2। अब देखो, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि L1 की वैल्यू कितनी है, इस वाले को कंसिडर करना है, L2 की वैल्यू क्या है, ये वाले को कंसिडर किया हो गया। इफ अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है, तब भी आपको क्या करना था, L1+L2+L3+L4 ऐसे फॉर्मूला यूज करने का। ओके, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और होता है, यहाँ पे भी होता, तो यहाँ पे L1+L2+L3+L4 ऐसा फॉर्मूला यूज करने का, सिंपल सा। Okay, so in this case, L is equal to L1+L2 to L1-L2. L1's value is 0, L2's value is 1. So L is equal to 0+1 to 0-1. So solve करेंगे, after solving we have L is equal to 1 only. ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस we will not consider. So L is equal to 1. If L is equal to 1, then term will be P. क्यों? क्योंकि 0 होती है S के लिए, 1 होती है P के लिए, 2 होती है D के लिए, एंड 3 होती है F के लिए, आपको पता है। So L is equal to 1 आया, it means it is P term. Okay, now we have to find out the S value. S value is given by S1 plus S2 to S1 minus S2। और S1 आपको पता है कि S क्या होता है, ये स्मॉल s स्पिन वैल्यू, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन वैल्यू हाफ होती है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो S1 plus S2। अगर यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ होता, चौथा यहाँ होता, तो अपन S1 plus S2 plus S3 plus S2 टू S1 minus S2 minus S3 minus S4 ऐसा यूज करते हैं। बट यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई S1 plus S2। तो स्पिन वैल्यू कितनी होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, हाफ, हाफ इसकी भी होती है, हाफ इसकी भी होती है, इसके लिए भी हाफ होती है, और इसके लिए भी हाफ होती है, इफ यहाँ पर होते हैं। सो जस्ट अपने को क्या करना है, वैल्यू पुट करेंगे, S1 हाफ प्लस हाफ गिव्स हाफ माइनस हाफ, सो इट इज 1 and 0। ओके, सो S की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 1 भी आ गई और 0 भी आ गई। अब सिंपल वापस L आ गया अपने पास, L वैल्यू, S आ गया, सो अपने वी हैव टू फाइंड आउट J वैल्यूज। ठीक है, सो और हाँ, इस केस में S की वैल्यू 1 and 0 है, सो स्पिन मल्टीपलिसिटी 2s+1। फर्स्ट 1 यूज करेंगे S की वैल्यू तो 3 आ जाएगी, एंड इफ वी विल यूज 0 देन इट वुड बी 1।
सो 2s plus 1 स्पिन मल्टीपलिसिटी कितनी मिल गई अपने को 2, 3 and 1. सो वी कैन राइट 3p and 1p. अभी j वैल्यू भी अपने फाइंड आउट नहीं की, इसलिए अपन ने j वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं की, बट वी विल फाइंड आउट. सो 3p, 3 कहाँ से आया, ये वाला 2s plus 1 स्पिन मल्टीपल. p कहाँ से आया, क्योंकि बिकॉज l की वैल्यू क्या है 1, सो दैट्स व्हाई p and 1p. नाउ नेक्स्ट स्टेप में अपने क्या करना है, डिटरमिनिंग j वैल्यूज. j वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अपने पास s, l की वैल्यू कितनी 1, s की वैल्यू कितनी 2 है, 3 and 1. सो अपने को दो बार फाइंड आउट करनी पड़ेगी. j की वैल्यू किससे होती है, फॉर्मूला क्या, l plus 1 s to l minus l. एंड फर्स्ट वी विल फाइंड आउट j वैल्यूज फॉर 3p टर्म. ये जो 3p है ना, इस टर्म के लिए, इस टर्म के लिए s की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू कितनी 1, l वैल्यू इज कॉमन. ओके, so s की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, so just put the value in the formula and find out the j values. So 1 plus 1, 1 minus 1, so it is 2 and 0. Okay, so अब अपने को इसको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया कि we have to subtract 1. so 2 minus 1, 1 आ गया, 0 आ गया, इससे आगे तो जाना नहीं है. तो ये हो गया 3p के लिए. सो टर्म क्या लिखेंगे अपन, j वैल्यू, आफ्टर मेंशनिंग j वैल्यू इट वुड बी 3p2, 3p1 and 3p0. ओके, फॉर 1p s वैल्यू कितनी है, इस 1 निकालने के लिए अपने s वैल्यू कितनी आई थी 0. सो s is 0 and l is 1. So j value will be 1 plus 0 to 1 minus 0, and it is j is equal to 1 and 1. So we can write 1p1. 1 कहाँ से आया, 2s plus 1 value. 2s plus 1 value is 1. And p is the l value 1. So here is p and 1 is the j value. Clear? Now term symbol for s1 and p1. अब जो अपना क्वेश्चन था कि term symbol s1 and p1 के लिए क्या है. So at the end we can say that term symbol for s1 and p1 के लिए क्या क्या आ गया, 3p2, 3p1, 3p0 and 1p1. So there are 4 term symbols for s1 and p1 orbitals. Clear? Now just see this table, screenshot ले लो इसका, and this table is for you. You will practice, and if you have any difficulty in this table कि ये जो possible terms j values l multiplicity ये कहाँ से आया, ask me.